bonjour. Bonjour, Ravinder. Good morning. Bonjour. Bonjour. Ça va bien et toi, comment ça va? Ça va bien, merci. Super. Bonjour, Webhub, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Alors, Webhub, quelle est ta nationalité? Je suis indien. D'accord. Et tu habites où? Euh, je habite à Toulouse. D'accord, tu habites à J'habite Toulouse. à Toulouse. Voilà, j'habite à Toulouse. Oui. Et Webhub, quelle est ta profession? Euh, je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Très bien. Et tu as quel âge? J'ai j'ai 40 ans. J'ai 40 ans ou 41 ans? 40 ans ou 41 ans? 40? 41 ans, d'accord. So 41 ans. So 41 ans is what you're going to say. Très bien. Et 41 ans. Et un an. voilà. 41 ans. 41 ans. Voilà, j'ai 41 ans. J'ai 41 ans. That's what you said? Oui? Yes, Voilà, j'ai 41 ans. Très bien. Alors, ok. oui. Et Weber, est-ce que tu regardes les films français? Non. Est-ce Je que ne tu regarde pas film. regardes les films français? Voilà. So my question to you is, you would respond again. Weber, est-ce que tu regardes les films français? What answer do you give me for that? Je ne regarde pas le film français. Voilà, je ne regarde pas les films français. Très bien. Voilà. Et Weber, est-ce que tu manges au restaurant? Est-ce que tu manges au restaurant? Oui, je mange à un restaurant. Je mange au restaurant. Et you? So you would say oui, je mange au restaurant. Très bien. Super. Et une autre question, one more question. Une autre question pour toi, Weber. Est-ce que tu écoutes la musique? Oui, j'écoute la musique encore. D'accord. Est-ce que tu écoutes la musique? And the response that you're giving to me is, j'écoute la musique un peu. J'écoute un peu la musique. So we would always put this just after the verb. J'écoute un peu la musique. So j'écoute un peu. D'accord. The quantity comes immediately after the verb. The quantity of the verb. So that's adverb. So j'écoute un peu la musique. Très bien. Parfait. Et le français est difficile? Oui, dis-moi. Bravo. Pardon. Au restaurant is A plus play, right? Exactly. If you remember the other day we talked about it, that AU comes from two words, Vaibhav, that is A plus LE, that makes AUO. At the restaurant, to the restaurant. And I is at here, right? I Yeah. at. A in this case is at. And L is the. L is the. And A plus L, they both become O. At the. That's the rule. Right? Ok, très bien. Parfait. Et toi, Ravindra, tout va bien? Tout va bien? Super. Super. What does that mean, tout va bien? Très bien. Did you say T-R-E-S? Très bien. No, I asked you a question. Tout va bien. Ravindra, tout va bien? Tout va bien? Two, I Tout. two. Tout. सब है, सब बढ़िया, सब Ah, बढ़िया. सब बढ़िया है. All is going well? Tout va bien? Oui. We two one. Voilà. Oui, tout va bien. You're going to use the same thing. Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Oui, tout va
bien. D'accord. Alors, oui, Ravindra. We can also ask the Two is two not of good. them. Yeah, I could have even asked tu vas bien. I could have asked tu vas bien, right? That's what you're saying, Vaibhav, this one? Yes, Right. yes, yes. So in this case, I would have directed my question to Ravindra that tu vas bien, you are doing fine. And this one was tu vas bien, is everything fine? So थोड़ा सा pronunciation में फर्क है, sorry, इसका ध्यान रखिएगा, ये है tu और ये है tu, ये है हिंदी वाला tu और ये है tu, sound में कह रहा हूँ, right? Okay. और इसमें ये वाह और ये एस हो जाएगा। यहाँ पे ये s हो जाएगा बिकॉज ये आले वर्ब है जो हम अभी सीखेंगे, या हमने एक बार देखा था, अगर आपको याद है नियर फ्यूचर हमने जब आपको थोड़ा सा पढ़ाया था वैभव, तो हमने बताया था आले वर्ब je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont, वो पूरा उसका बॉडी बदल जाता है एंड दैट इज टू गो। तो हालचाल में हम हमेशा आले वर्ब काम में लेते हैं, दैट्स हाउ वी डू। So, two वा बिया अगर हमें पूछना है तो हम मतलब हम पूरी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं या आसपास सराउंडिंग्स के बारे में? जो आपने हिंदी में कहा सब बढ़िया, तो अब आप सोच लीजिए हिंदी में क्या क्या मतलब है इसका, सब भी इंक्लूड हो गए, फैमिली भी और आसपास सब कुछ, सब बढ़िया दैट वे। Tu vas bien? Oui, oui, tout va bien, tout va bien. And not tu vas bien. It's not the tu, it is tu. तो tu and tu, फर्क है, right? Tu vas bien and tu vas bien. Très bien. Alors, Ravinder, est-ce que tu chantes en anglais? Est-ce que tu chantes en anglais? Oui, j'ai chante en anglais. Est-ce que tu chantes en anglais? I'm sure आपके आंखों के सामने ऐसा क्वेश्चन बना होगा, Vaibhav and Ravindra, ये बनना चाहिए धीरे धीरे, your mind should visualize it this way. Est-ce que tu chantes en anglais? What does that question mean, Ravindra? क्या तुम इंग्लिश सॉन्ग सुनती हो? नहीं, सुनना नहीं है अभी तो, गाना है, chanter, to sing. गाना गाती हूँ, हाँ, do you sing in English? तो आपने हाँ बोला है, थोड़ा 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 थोड़ा, un peu, थोड़ा थोड़ा, un peu, U-M-P-U, the way, yeah, the way Vaibhav used. Oui. j'ai un peu chanté en anglais. Oui, j'ai chanté un peu en anglais. Voilà. En anglais. तो इसको और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं हम। रविंद्र बोलिए je, अब इसको पकड़ लीजिए, बोलिए je, voilà, chante, chante, un peu, un peu, en anglais, en anglais, en anglais, voilà. So I'll ask you again this question, Ravindra. Est-ce que tu chantes en anglais? Oui, je chante un peu en anglais. Bravo. Oui, je chante un peu en anglais. Voilà, très bien. Super. One more question for you, Ravindra. Voilà. Est-ce que tu travailles à Toulouse? Est-ce que tu travailles à Toulouse? Est-ce que... Non. Je ne travaille pas à Toulouse. Voilà. I don't work. Exactly. Voilà, je ne travaille pas à Toulouse. Exactly. You have to say ne pas. That's correct. No, je ne travaille pas à Toulouse. मैं काम नहीं करती हूँ, right? Je ne travaille pas à Toulouse. Très bien. Okay, parfait. So these are some of the ER ending verbs. If you got time, Vaibhav, to watch yesterday's video, we ran through a little bit of ER ending verbs, and we did see the modal verbs, which included can, which is for war, and must, which is the war, and we also saw vouloir, which is want. तो मैं एक बार फटाफट से आपके लिए रन थ्रू कर लेता हूँ। या रविंद्र, सर एक क्वेश्चन या है मेरा उसी से कि जॉब नहीं करती जैसे, सो मैं ये भी बोल सकती हूँ je ne travaille pas। je ne, या इतना भी मैं हाँ बिल्कुल, je ne travaille, je ne travaille नहीं, je ne travaille pas, je ne travaille pas, absolutely, I don't work. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई तुलूज में मैं काम नहीं करती, शायद कहीं और काम करती हूँ, है ना, उस हिसाब से। या नो नो, je ne travaille pas, je ne travaille pas, voilà. And if you want to say like I'm a homemaker, if that's what your answer is, je suis femme au foyer, je suis femme au foyer, F-E-M-M-E space A-U space F-O-Y-E-R. Je suis femme au foyer. I'm a homemaker. I'm a housewife. Je suis femme au foyer.
Je suis femme au foyer. Voilà. Okay. Femme. F-E-M-M-E. Yeah, that's F-E-M-M-E, femme au foyer. Right? Voilà. So foyer is house. Yeah, foyer is house actually, yeah. But we call the foyer is house, residence. But this is a very specific foyer that we largely use with femme au foyer. We would never use a word Weber that you know, and I think you also know, Ravinder. There's maison. Maison मतलब घर. M-A-I-S-O-N. Maison. आपको पता होगा ये फेमिनिन शब्द है une maison. तो हम ये नहीं बोलेंगे कभी भी femme à la maison, नहीं, वो सही ट्रांसलेशन नहीं है. इसका फिक्स एक टर्म है हाउसवाइफ का, होममेकर का, femme au foyer. लेकिन घर जो होता है जिसमें हम रहते हैं उसको हम मेजों बोलते हैं, यून मेजों. तो उसको फोये बहुत रेयर केस में बोलेंगे, रेजिडेंस के हिसाब से तब होगा. अदरवाइज इट्स लार्जली फार्म ऑफ फोये फॉर हाउसवाइफ एंड हाउसेस मेजों. Ça va? Très bien. Okay, so we'll just quickly run through and we'll listen to you people as to if you remember well the three verbs that were pouvoir, pardon, and then one was vouloir and one was devoir. Let's see if you remember them. Ça va, Weber? Tu as répété? Tu as répété. What is that question? It's a past tense question. I'm asking you something. Weber, tu as répété? Did you repeat? Voila, did you repeat? Wonderful. Did you repeat? So, tu as répété à la maison, at the house. अब इसको मैं घर पर रिपीट किया गया तो उसमें à la maison. You repeated matin. Hein? In morning, what is that? D'accord, ce matin, j'ai répété ce matin. J'ai répété, I'll put ce. Okay, just a second first. That's the question. Tu as répété? I asked him, have you repeated? Did you repeat? So he says, we. Now, we are already jumping on to past tense, not in a detailed way, just for this question. It's a very simple tense. Believe me, past tense is the easiest. How you would just wonder. I repeated. I have repeated. You remember, everyone, both of you? I have को हम जे बोलते हैं. I have जे. याद है आप दोनों को? अब हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगा देना है फ्रेंच के अंदर. थर्ड फॉर्म फ्रेंच में बहुत आसान होता है, ई आर एंडिंग का. हमें सिर्फ ई पे एक्सेंट लगाना है. आर ई रे होता है, ये पे होता है, और टी ई आर में से आर को हटाना है हमारे को, और आर को हटा के उसकी जगह हमें ई पे एक्सेंट लगाना है. तो हमारा रिपीटेड बन जाएगा, विच इज पास्ट टेंस. सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, बट थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा. आई हैव रिपीटेड, मैंने रिपीट किया. और कब किया? आज सुबह किया तो स माता है. और कहाँ किया? घर पे किया तो आला मेजों. आला मेजों, एट द हाउस. तो इनका उत्तर बन जाएगा oui, j'ai répété ce matin à la maison. Yeah, you want to try that, Weber? Oui, the whole thing. Oui, j'ai répété Voilà, ce matin à la maison. voilà. अब देखिए हर एक एक्सेंट पे ध्यान दीजिएगा. रे पे ते सब ए है, तो बोलिए j'ai répété. J'ai répété. Voilà, répété, répété. And this C is not say. C is not say. What is that, Weber? So. So की ध्वनि आएगी. जहां कहीं पे भी रविंद्र आपको ई दिखता है, एम ई म, एल ई ल, डी ई द, टी ई त, एस ई स, सी ई स, ये अ पे रुकना है, ना कि ए पे रुकना है. राइट, ये ध्यान रखिएगा. सो ये इस तरीके से चलेगा. j'ai répété. सॉरी, हाँ होगा, डोंट वरी. धीरे धीरे आपका फ्रेंच ब्रेन एक्टिव हो जाएगा. द मोमेंट यू सी दीज वर्ड्स यू विल गेट टू नो, सो डोंट वरी. सो j'ai répété ce matin. माता, आपको याद है? आई थिंक हमने एक बार पढ़ा था माता, जब तरुण ने भी कहा था कि सर ये आयन स माखता था, माखता, तो आयन को ऐ पढ़ना है, तो माता. माता मतलब मॉर्निंग. à la maison. You can repeat that, Weber, once, whole thing. Oui, j'ai répété ce matin à la maison. Perfect, which means I repeated this morning in the house, or at the house, or at my place. Voila. So just catch hold of this little thing, Ravindra and Vaibhav and everyone else who is watching this video. This is past tense. We haven't gone into it in detail, but the simple idea is कि आपको अव्वार वर्ब की आवश्यकता पड़ती है पहले हिस्से में. I have, you have, he has, she has, और बाद में थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, आपका पास्ट टेंस बन जाएगा. तो जब हम पास्ट टेंस को देखेंगे तब इस वाले वाक्य को हम वापस रेफर करेंगे, अगर हमें याद रहेगा, या आपको याद रहता है तो आप इसको रिपीट कीजिएगा. So yes, I repeated this morning à la maison. Voilà. I'll ask the same question to you, Ravindra. Tu as répété à la maison?
Yeah, Ravindra. और थोड़ा सा स्लाइड स्टार्ट कर देंगे तो That's better? अब ठीक है. हाँ जी हाँ जी Okay. All right. So, जी सर so the question for you, Ravindra. Tu as répété à la maison? Past tense में पूछ रहा हूँ. Tu as répété. we Yeah. j'ai répété c'est नाइट को क्या nuit c'est nuit Okay. à la maison Voilà. ये कल, लेकिन वो तो कल हो जाएगी ना, कल शाम को आपके यहाँ की जो कल. रात को हाँ हाँ रात को हाँ, तो hier soir. अभी मॉर्निंग में हाँ, तो यानी जो रात बीत चुकी है उसकी बात कर रहे हैं, आपने उसमें पढ़ा था. हाँ जी तो हाँ hier, जी तो हम फ्रेंच भाषा में शाम बोलेंगे कि पिछली शाम जो रात तक चली हो, चाहे 12 बज गए हो चाहे 1 बज गया हो, तो hier soir. ओके J'ai répété hier soir à la maison. मैंने कल शाम को या रात को पढ़ा. तो nuit ना बोल के soir बोलेंगे हम, राइट? J'ai répété S-O-I-R soir and hier soir. Hier means yesterday evening. Hier. How you pronounce it? Yes, H के साउंड हाँ, H का साउंड नहीं है. I-E-R is hier. र तक रुकना है. Hier. Hier. र पे रुकना है, राइट? Hier. Okay. Voilà. D'accord. All right. So we'll look at these verbs. Yeah. So the first one is pouvoir. Another one is vouloir, and the third one is devoir. Let's see if you remember. So who can tell the positive for pouvoir? Vaibhav, would you try? Sorry. Pouvoir ka positive. Oui. Voilà. 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 Ils peuvent, elles peuvent. Exactly. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. ये आपको अच्छे से याद होगा, I'm sure. Let's check the negative one with Ravindra. बताइए रविंद्र negative. पढ़ दीजिए. Je ne peux pas. Voilà. Tu ne peux pas. Hmm. Il, elle, on ne pas. Peut pas. Hmm. Nous ne pouvons pas. Hmm. Vous ne Hmm. pouvez pas. Voilà. Il, elle ne peuvent Peuvent pas. Very good. ठीक है, perfect. मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए एक बार नेगेटिव. Je ne peux pas, tu ne peux pas, il ne peut pas, elle ne peut pas, on ne peut pas, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas और अंत में elles ne peuvent pas. I cannot, he cannot, he cannot, she cannot. ये आपको याद है अंग्रेजी में. चलिए एक दो फटाफट से वाक्य बना के देखते हैं. How would someone say I cannot speak Spanish? मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता हूँ. वैभव. Je ne peux pas parler, पूरी क्रिया लगानी है और एस्पानियोल. ठीक है, पार्ले लगाना पड़ेगा, राइट? Je ne peux pas parler espagnol. I cannot speak Spanish. हमारा रूल ये कहता है कि हमने अगर pouvoir वर्ब को कंजुगेट कर दिया है रविंद्र, तो हम दूसरे वर्ब को एज इट इज रखते हैं. आई होप यू रिमेंबर दिस वन. तो इसको आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है. er एंडिंग है तो er छोड़ दीजिए, ir है तो ओरिजिनल छोड़ दीजिए, और re है तो ओरिजिनल उसको लिख दीजिए. डोंट चेंज इट एनीमोर. Okay, so I cannot speak Spanish. Je ne peux pas parler espagnol, right? Okay, if you were to ask this question, Ravindra, to someone, you cannot eat with me. तुम मेरे साथ नहीं खा सकते हो क्या? That's like a question thing and still asking someone. You cannot eat with me. Yeah, you'll have to unmute yourself. Ravindra, yeah. Yeah, tell me. Est-ce que tu n'as pas manger with me को क्या बोलेंगे? मी तो आपको याद है, मुआ आपने Avec बताया. moi. Avec Avec moi. avec moi. Avec Avec moi, moi. right? Avec is with AVEC. Avec मतलब with, और moi, toi ये होते हैं हमारे. इनको बोलते हैं प्रोनोटोनिक, बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मुआ पे रुक जाएंगे. मुआ मीन्स मी.
So there are two ways. The way Ravinder did, what she did was to put ESC, Weber. You can put ESC, EST-CE छोटा छोटा लिखा था I'm क्या not आपको? able to see the complete full screen. Is it better now? Little better. Print the screen, that will be full for you. Take the screen. Okay, give me 1 minute. पिन कैसे करूँ मैं? स्क्रीन के ऊपर कर्सर लेगा और एक पिन का ऑप्शन आएगा. Okay, हाँ जी, आ गया. Thank you. Okay, great. चलिए. So आपको इसमें लिखना है. I'll just put. So what you see is in this one, Weber, we can also put the question ESC, ESTCEQUE, right? ESC से भी आपका प्रश्न बनता है. अन्यथा आप टोन ले सकते हैं. You could have simply done. Tu ne peux pas manger avec moi? तुम मेरे साथ नहीं खा सकते हो क्या? Tu ne peux pas manger avec moi? Or you could have done the way Ravinder did. She did ESC. ESC मतलब क्या? Est-ce que tu ne peux pas manger avec moi? That's a sure short question. लेकिन कई बार लोगों को टोन लेने में समस्या होती है, तो हमको एस्क लगा के उसको क्लैरिटी से सवाल बनाना पड़ता है. जिससे हमने आपसे पूछे थे सारे सवाल वैभव शुरुआत में, सब में एस्क लगाया था. I could have removed esk and I could have taken a tone. That also would have worked for me. Okay. Yes. तो ये हो गया हमारा वर्ब pouvoir जो आप काफी हद तक समझ चुके हैं. Ça va? Tu as noté? Tu as noté? What does that question mean if I asked you, Ravindra, tu as noté? Tu as noté? क्या तुम नोट कर रही हो? हाँ, वेरी गुड. पास्ट टेंस में देखिए, तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ, मैंने नोट कर लिया. याद कीजिए. We, हाँ, note. वेरी गुड. सोचिए, ऑलरेडी पास्ट टेंस बोलने लगे आप. यस, आई हैव नोटेड, मैंने नोट कर लिया. वी जे नोटे, राइट? दिस वी आई हैव नोटेड, मैंने लिख लिया, मैंने नोट कर लिया. यस, आई हैव नोटेड, राइट? तो ये इजी चलेगा. ध्यान रखिएगा इन सारे सेंटेंसेस को, ये बाद में हमें बहुत हेल्प करेंगे. टू आई नोटे, हैव यू नोटेड? यस, आई हैव नोटेड. वी जे नोटे, वाला, राइट? एंड इफ समवन हैड नॉट नोटेड, वैभव, हाउ वुड दिस पर्सन से? मैंने नोट नहीं किया. No, Oh la la, past tense. Past tense, बोलिए. How do you say this one? Yeah, je n'ai pas noté. Voilà, non, je n'ai pas noté. Right, Vaibhav? Je n'ai pas. What did you say? Did you say the same thing? Vaibhav? No, you said something else, right? So, je n'ai pas noté बोलना है आपको. J'ai का opposite होता है négative में, je n'ai pas. Je n'ai pas noté. Voilà. Je n'ai pas noté. Right? Très bien. Voilà, tu as noté? Ravinder, tu as noté? J'ai noté. Oui, sorry, we noté. Oui, j'ai noté. Oui, j'ai noté. Voilà. Et toi, Vaibhav, tu as noté? Tu as noté? Oui. Yeah. J'ai noté. Voilà, j'ai noté. देखिए इनको बोलिए, जितना बोलेंगे उतना कंफर्टेबल फील करेंगे, अदरवाइज हमेशा अटकेगा ये आपके बोलते समय. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. वुलवार वर्ब देखते हैं फटाफट से, बिकॉज़ आज मैं आपके लिए एक टेक्स्ट लेके आया हूँ, थोड़ी और एक्टिविटीज लाए. वुलवार, इट मींस वांट. सो लेट्स लिसन फ्रॉम रविंद्र फर्स्ट द पॉजिटिव ऑफ वुलवार. बताइए. Nous avons. Oh là là, nous voulons. Sorry. Nous voulons. Yeah. Voilà. याद है? Très bien. So it goes like this. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Clear आपको? Ça va? Vaibhav, c'est clair? Yes. Oui? Okay. So Vaibhav, over to you for the negative. You have to put the ne and pa. I think I'll just quickly correct. I think I heard Ravinder say ne in the initial part of je ne peux pas. So आपको उसको soft करना है no. No, no. N-E no है, right? No. चलिए, Vaibhav, negative बताइए सभी का. Je ne veux pas. Tu ne veux pas. Voilà. Voilà. Voilà.
Valpa. Il, el, ne, valpa. Perfect, right? Okay, great. I'll just quickly do it for you in negative. Je ne veux pas. I don't want. Tu ne veux pas. Il ne veut pas. Elle ne veut pas. On ne veut pas. Nous ne voulons pas. Vous ne voulez pas. और अंत में ils ne veulent pas. और अंत में elles ne veulent pas. ये इतना आपको उच्चारण तो बोलना ही पड़ेगा. Okay. Alright. Since you are into that culture and ambiance, I'll tell you, French लोगों की आदत होती है वो न को खा जाते हैं. That means they remove it. और वो कई बार बोलेंगे je veux pas. Je veux pas. I don't want. Je veux pas. Right? तो आपको न नहीं सुनाई देगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा. आप भी धीरे धीरे मुझे ध्यान है जब आप भी ऐसे एक्सपर्ट हो जाएंगे आप न बोलेंगे ही नहीं. आप je veux pas. Je veux pas. I don't want. मुझे नहीं चाहिए. Je veux pas. So पा का भी मतलब हमें फिर पा से देखना पड़ेगा. पा बोल रहा है मतलब हाँ पा का मतलब है कि not है वो है ना. Je veux pas. Je veux pas. और context भी हाँ कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा अदरवाइज न तो वो खा जाएंगे तो je veux pas. Right? Because that's how you grow in languages. All right. So if someone were to say, I don't want to eat, मैं खाना नहीं चाहता. How do you say Vaibhav? मैं खाना नहीं चाहता. I don't want to eat. मैं खाना नहीं चाहता. I don't want to eat. ना कि I'm not eating. या I don't eat नहीं है. I don't want to. Want लगाना है आपको यहाँ पे. ये want है. इसको डाल के बोलिए. Manger. Voilà, je ne veux pas manger. I don't want to eat. आपने जो बोला था वो था je ne mange pas, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में I am not eating, अन्यथा I don't eat. Right? ये है इसका मतलब. पर आपको यहाँ पे कहना है मैं खाना नहीं चाहता हूँ. I don't want to eat. Right? Okay. What if you were to ask this? Ça va? C'est clair? Oui? हाँ I don't eat. मैं नहीं खाता हूँ. I don't eat. या फिर I am not eating. Oh, I'm sorry. I don't eat. I am not eating. Yeah. ये होता है je ne mange pas. याद है आपको ये प्रेजेंट टेंस का कॉन्जुगेशन है. याद रखिएगा. ये भी प्रेजेंट ही टेंस है बट इसमें हमारा एक ऑक्सिलरी वर्ब आ चुका है want. इस वजह से हमने पूरा manger रखा है. वहां तो हमने सीधे manger पे ही काम किया. That's why. हाँ je ne mange pas viande. जो मीट होता है इन जनरल उसको viande कहते हैं. VIANDE viande. viande. और उसके पहले आपको DE द लगाना पड़ेगा. ये हम आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे कि जो चीजें जिनकी हम मात्रा फिक्स नहीं होती है meat for example it's some meat or what is the quantity, it's not fixed, so we always when you make negative out of it you always say de. je ne mange pas de viande. de बोलना पड़ेगा राइट नेगेटिव में. ये हम आगे सीखेंगे. इस सेंटेंस को याद रखिएगा. नेगेटिव के अंदर द लगता है. सो je ne mange pas de viande. I don't eat any meat or I don't eat meat. I eat no meat वाला राइट. je ne mange pas de viande. viande. I think आपने पूले बोला रविंद्र. पूले पुले इज चिकन. पुले इज चिकन. तो कोई व्यक्ति अगर चिकन नहीं खाता है तो व्यक्ति कहेगा je ne mange pas de poulet. je ne mange pas de poulet. de poulet. So meat में सब कुछ कवर होगा. हाँ वो एक जेनरिक हाँ एक जेनरिक टर्म है. एवरीथिंग इज देयर राइट. बट सी फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग. कोई आपको इनवाइट करता है और उनको लगता है कि फिश for them it's like yeah, so it's you have to be very clear that je ne mange pas ça, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poulet, je ne mange pas de poisson. So you would have to cut it short and then you would have to je mange que des légumes. मैं सिर्फ सब्जियां खाता या खाती हूँ. je mange que des légumes. légume is vegetables. So légumes. so je ne mange que. So ये एक अलग कंस्ट्रक्शन है. न का मतलब होता है ओनली. न का जो होता है ना वो ओनली के लिए काम में लिया जाता है. So मैं केवल सब्जियां खाता हूँ. मतलब ऑफ कोर्स रोटी भी खाता हूँ, बाकी चीज भी खाता हूँ, चावल खाता हूँ, लेकिन मीट नहीं खाता. तो je ne mange que des légumes. que des légumes. I'll rewrite the whole sentence for you. So I only eat vegetables के लिए हम लिखेंगे je ne mange que des légumes. So न और क का मतलब होता है ओनली. ओनली
कोई तो भी ये भी फा वाले न फा की तरह यूज होता है, अगर हमें ओनली लिखना है तो नो बी आएगा। वेरी गुड। हाँ, ये अगर आपको सिर्फ मात्र केवल केवल मात्र वो चीज बोलनी है तो न को उस क्रिया के आजू बाजू बिठानी है आपको, और आपको अपना ओनली का सेंस आ जाएगा। मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूँ, सिर्फ केवल, यू नो, यू वांट टू रियली स्ट्रेस ऑन दैट फैक्ट, तो न को। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको काट देते हैं, थोड़ा सा काटा पीटी हुई। इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा आप लोग, सिंस यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन रविंद्र, न क इस तरीके से रखा तो जाता है पर क की पोजीशन थोड़ी सी विशेष है। मतलब यहाँ तो एक ही क्रिया है इसलिए उसके आजू बाजू लगा हुआ दिख रहा है ये हमें न और क, लेकिन असलियत में वैभव क रखा जाता है उस चीज के जस्ट पहले, उस चीज के जस्ट पहले जो चीज आप ओनली के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पे दो क्रियाएं होती तो हम उस क को ले जाते उस संज्ञा के पहले, उस नाउन के पहले जो आप ओनली के कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। न क की एक बात है कि जो क है इट इज प्लेस्ड बिफोर दैट थिंग। यहाँ पे क का पोजीशन मॉन्च के बाद नहीं है, ये लघ्युम के पहले है, ऐसे समझना है इसको। अभी ज्यादा मत परेशान होइए। या कोई ऐसा, हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए आपको आपको बोलना है हाँ, मैं सिर्फ चाय पीना चाहती हूँ, मैं सिर्फ चाय पीना चाहती हूँ, है ना। तो चाय पीना भी और चाहना भी है, दो क्रियाएं होगी। तो आप क्या बोलोगे, ज न व। पीने की क्रिया होती है, आपको अभी शायद बताई नहीं मैंने, बुआर, BOIR, बुआर होती है ना, बुआर। तो मैं सिर्फ चाय पीना चाहती हूँ, किसी ने पूछा क्या ये पियोगे, नहीं सिर्फ मुझे चाय पीनी है ना, मैं सिर्फ चाय पीना चाहती। ज न व बुआर क द्युते, मैं सिर्फ चाय पीना चाहती हूँ। देखिए मैं समझा देता हूं, न और क तो ओनली के केस में आ गया, ठीक है, और चाय को ते बोलते हैं, दिस इज टी। और फ्रेंच भाषा में वो चीजें जिनको आप गिन नहीं सकते, थोड़ा, थोड़ी, थोड़े, कुछ, इन सभी के लिए हमें द्यू, दला ये सब लगाना पड़ता है। तो द्यू हो गया थोड़ा, थोड़ी, सम टी, सम। आई want to drink, I only want to drink some tea, मैं सिर्फ थोड़ी चाय पीना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ये बोलूंगा मैं। तो इस केस में वैभव आपने देखा कि जो न क की पोजीशनिंग है वो मेन वर्ब वांट के आजू बाजू में नहीं थी, वो क चला गया उस वस्तु के जस्ट पहले जिसको ओनली का आप सेंस देना चाहते हो। ये न क की विशेषता है। अदरवाइज तो नेगेटिव में सब में न पा आजू बाजू में रहता है, हमारे मेन वर्ब जो फर्स्ट वर्ब आ रहा है उसके आजू बाजू में, दैट यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ, राइट। मतलब ये न यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। हाँ, ये न क का पेयरिंग है, ये न क पेयरिंग है, दैट गोज फॉर ओनली। एंड अगेन एज आई सेड, फ्रेंच लोग इस न को भी खा जाएंगे और क्या बोलेंगे, je veux boire que du thé, je veux boire que du thé, राइट। तो उस न को भी हटा देंगे रविंद्र, दे विल सिंपली से je veux boire que du thé, मैं सिर्फ चाय पीना चाहती हूँ। So there is a relative do is learn at हाँ, वेरी गुड। ड्यू, ड्यू क्योंकि चाय मैस्कुलिन होती है, फ्रेंच भाषा में चाय जो होती है, हमारी हिंदी की चाय वो मैस्कुलिन है, तो वो ड्यू लगेगा उसके पहले। तो खाने पीने की चीजों के पहले, मतलब खाने पीने का मतलब ऐसी चीजें इनकी आप मात्रा नहीं कर सकते ना कि भाई एक चीनी होती नहीं है, कुछ चीनी, थोड़ी चीनी होती है, एक जूस नहीं होता, थोड़ा जूस होता है, थोड़ा पानी, थोड़ी तसल्ली, थोड़ी शांति, थोड़ी कोई भी चीज जो थोड़ा थोड़ी के हिसाब से आप कहना चाहें, कुछ के हिसाब से कहना चाहें, उसको फ्रेंच में हमेशा हमें आर्टिकल पार्टिटिव लगाना पड़ता है, जो हम अगले वीकेंड पे हम देखेंगे, पर इसको हम रेफर करेंगे इस सेंटेंस को उस समय। सो सर ये जो सम होता है इसमें मतलब एक तो डी दो ये चार होते हैं, इसके अंदर ड्यू होता है, दला होता है, DEL अपोस्ट्रोफ होता है, DES होता है, ये चारों सम है। अंग्रेजी में सम है, लेकिन फ्रेंच भाषा में निर्भर करेगा कि आप चाय की बात कर रहे हो, कि आप आटे की बात कर रहे हो, कि आप पानी की बात कर रहे हो, कि आप कैंडीज की बात कर रहे हो। क्योंकि चाय मैस्कुलिन है तो ड्यू लगेगा, आटा जो होता है वो दला होता है, फारीन, और DEL अपोस्ट्रोफ पानी के पहले लगेगा क्योंकि पानी वॉवल से चालू है, और अंत में DES, वो सभी चीजें जो प्लूरल होती है। उदाहरण, द्यूते चाय, दला फारीन थोड़ा आटा, दलो पानी, और कैंडीज को बोलते हैं बोम बोम, BONBONS, बोम्बो बोलते हैं कैंडीज को, तो दे बोम्बो। तो ये हमें मतलब अब बाद में पता चल जाएगा कि हमें क्या लगाना है, जैसे अभी आई एम नॉट क्लियर कि मुझे किस चीज के आगे क्या नहीं नहीं, अभी लगाना है, आपको बाद में मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, तो सिर्फ आपने चाय एकदम से पीने की इच्छा जाहिर करी तो मुझे बताना पड़ा आपको। अच्छा तो कहीं आप जाओ तो सिर्फ आप चाय पियोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि je veux boire que du thé, क लगाना पड़ेगा, que du thé। सो ड्यू लगाना जरूरी है। तो ड्यू इसलिए बिकॉज चाय इज मैस्कुलिन इन फ्रेंच,
de la for feminine items जिनको गिन नहीं सकते, and del apostrophe before water, और they before anything that is plural. ये हमें ध्यान रखना है, राइट? आई टीच यू, डोंट वरी, ये भी बताऊंगा और कुछ ये चीजें भी बताऊंगा, और आप भी अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन चीजों को देखते हो आप देखा करिए उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या उसका जेंडर है, क्या है, तो वो भी आपकी एक लर्निंग होगी. Ça va? C'est clair? Oui, oui. ओके, très bien. On va continuer. आखिरी फटाफट से वर्ब देखते हैं. एक हमने देखा था devoir, which means must, राइट? आपको याद है वैभव devoir? बताइए कैसे इसका पॉजिटिव करेंगे. Je dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons, vous devez, doivent, ils, elles doivent, राइट? ils, elles doivent, doivent. चलिए ठीक है. सर नेगेटिव देख लेते हैं. रविंद्र आप बताइए नेगेटिव. Je ne dois pas. श्योर? Je ne dois pas. हाँ, je ne dois pas. आगे. Tu ne dois pas. बोलते रहिए. Elle ne doit pas. Elle ne doit pas. voilà. Nous ne devons pas. voilà. Vous ne devez pas. Il, elle ne doivent pas. Voilà. Il, elle ne doivent pas. Perfect. Right? I hope spelling clear है. DOIS है, ये ELLES है. कुछ गड़बड़ दिखे कोई शब्द तो पूछ लीजिएगा आप मुझसे. ये NEE है, NE है मतलब सब जगह, और PAS है आखिरी में. Okay, if I were to tell someone, वैभव, आपको रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए, आप क्यों खाते हो? तबीयत आपकी बिगड़ जाती है. This and that. So I'm telling you, you must not eat in the restaurant. How do I say that? voilà. Tu ne dois pas manger. आ लगाएंगे या ओ लगाएंगे? au restaurant. voilà. Tu ne dois pas manger au restaurant. तुम्हें रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए. Tu ne dois pas manger au restaurant. Restaurant, pardon. Restaurant. RESTAURANT. अंग्रेजी वाली स्पेलिंग है, सेम अंग्रेजी वाली है, बट रेस्टोरेंट. रॉ पे रुक जाएंगे, टी को नहीं पढ़ेंगे. परफेक्ट, राइट? एंड हमें कसरत करनी चाहिए. ये कैसे बोलेंगे हम रविंद्र? वी मस्ट डू एक्सरसाइज. yes. nous is we. Nous devons to do is faire. Nous devons faire exercice. voilà. nous devons faire des exercices. क्या बोलेंगे वैभव? बताइए. des exercices physiques. des exercices physiques. ट्राई कीजिए. des exercices physiques. voilà. des इसको छोड़ दीजिए. exercice. perfect. उसके पहले दे लगा दीजिए. des exercices physiques. okay. I'll try. yeah, you'll try. okay. exercice. Would you try Vaibhav once? des exercices physiques. voilà, bravo. You want to try Ravindra once? des exercices physiques. हाँ, एक्सरसाइज सही बोल रहे हैं आप. उसके पहले जस्ट दे की ध्वनि को लिएसों करते हुए जोड़ना है. des exercices physiques. ठीक है, ये जोड़ दें तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, अदरवाइज एक्सरसाइज सही बोल रहे हैं. एक बार फिर से लास्ट बार ट्राई करिए रविंद्र. एक्सरसाइज voilà. physique. और उसके पहले voilà. des exercices perfect. तो इसको और सुन लीजिएगा इस वीडियो को. आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा. मैं रिपीट करता हूं आपके लिए. nous devons faire des exercices physiques. des exercices physiques. हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए.
हमें फिजिक लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि गणित की, मैथमेटिक्स की भी एक्सरसाइज हो सकती है, साइंस की भी हो सकती है, इसलिए ये बताना है कि फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो रही है, ना कि कोई और एक्सरसाइज फ्रेंच में, राइट। चलिए, ça va, c'est clair, वैभव, रविंद्र, c'est bon? So I can say ça va, आपने कहा oui ça va, मैंने कहा c'est clair, आपने कहा oui c'est clair, मैंने कहा c'est bon, क्या मतलब है इसका c'est bon? ठीक है। हाँ, सब बढ़िया, सब बढ़िया, ऑल वेल ऑल गुड। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, c'est bon हम दो स्थिति में काम में लेते हैं, फ्रेंच कॉन्टेक्स्ट में या फ्रेंच स्पीकिंग कॉन्टेक्स्ट में। एक कोई हाँ, वेरी गुड, खाने पीने की चीज आपने खाई, आपने कहा c'est bon, ah oui c'est bon, c'est très bon, बहुत ही बढ़िया है, राइट। सो c'est bon, और आप ये कहना चाहेंगे कि सब ठीक है तब भी c'est bon, लेकिन ये हम c'est bon कभी भी किसी के रिव्यू के बारे में नहीं कहेंगे। फिल्म कैसी लगी, c'est bon, गलत है। वो किताब कैसी लगी, c'est bon, इट्स गुड, वो गलत है। तो सिर्फ खाने पीने के फीडबैक पे c'est bon, oui oui, c'est bon, c'est délicieux, it's delicious, c'est délicieux, délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux, it's delicious, right? délicieux या फिर c'est bon बोला तो अच्छा है और उसे और बेहतर लगा तो c'est délicieux, या फिर सब ठीक है, all well, oui oui c'est bon, उस केस में, राइट। So, sir, तो फिल्म कैसी लगी, तो how will you answer that? हाँ, अगर कोई किसी ने पूछा आपसे पास्ट टेंस में comment tu as trouvé le film, मैं आपके लिए प्रश्न लिखता हूँ, तुम्हें फिल्म कैसी लगी, how, comment आई एम श्योर आप जानते हैं, अब तो आप पास्ट टेंस भी जान गए। tu as trouvé, trouvé का मतलब होता है टू फाइंड, और उसका पास्ट टेंस होता है trouvé। तुम्हें फिल्म कैसी लगी, comment tu as trouvé le film, फिल्म तुम्हें कैसी लगी। तो मैंने कहा c'est bon तो गलत, फ्रेंच है, उसका उत्तर होगा c'est un bon film, ये एक अच्छी फिल्म है। c'est un bon film, c'est un bon film, यानी मुझे bon के बाद फिल्म लगाना आवश्यक है। c'est un bon film, या वैभव, अगर खाना कैसा लगा तो फिर वो हाँ तब से bon में काम चल जाएगा। c'est bon एक एक्सप्रेशन है स्वादिष्ट के लिए, अच्छे के लिए, वो अपने आप में उसका रिस्पॉन्स का भी बहुत बढ़िया टेस्टी टाइप है, उसका सेंस टेस्टी के हिसाब से फिक्स है वो c'est bon। लेकिन फिल्म कैसी लगी, c'est un bon film, या आपने डेलिशियस बोला, डेलिशियो, हाँ वो भी भोजन के लिए ही है। Should I repeat for you what I just said? So tell me. मतलब आप मेरे को खाना खाना है, मैंने पूछा हाँ, खाना अच्छा है, तो यू से वो ओनली, यू विल से वो से डिलीशियस। आप बहुत ज्यादा अच्छा आपको लगा तो आपने वही c'est bon बढ़िया है, तो आपको किसी ने अच्छा सिर्फ बढ़िया ही है, बहुत बढ़िया नहीं है, उससे délicieux, वो उसकी एक ऊपर की मात्रा है, नो इट्स लाइक मोर देन दैट, एडजेक्टिव हो गया और सुपरलेटिव डिग्री पे चला गया, c'est délicieux। तो ये सिर्फ पकवान के लिए, व्यंजनों के लिए, when you have tasted them and you felt really nice about that, but if you talk about anything else, फिल्म कैसी लगी, किताब कैसी लगी, वो प्ले कैसा लगा, so c'est un bon film, it's a good film, c'est un bon livre, it's a good book, किताब को बोलते हैं le livre, so c'est un bon livre, किताब अच्छी है। Yeah, Ravindra, you were saying something? यस सर, ये ऊपर जो क्वेश्चन में है trouvé, इसका क्या मतलब है? Trouvé आता है हमारे पास एक वर्ब है, trouvé वर्ब होता है TROUVER, जिसका मतलब होता है टू फाइंड। टू फाइंड मतलब ना केवल वैसे फाइंड करना, ढूंढना, बल्कि अंग्रेजी में बोलते हैं ना तुम्हें फिल्म कैसी लगी, लगना, हिंदी का जो लगना होता है वो फ्रेंच में और अंग्रेजी का सेम चलता है, टू फाइंड, फिल्म कैसी लगी, टू फाइंड हाउ डिड यू फाइंड द मूवी, राइट। कैसे? हाँ बिल्कुल, तो अंग्रेजी में भी तो अंग्रेजी में वही होता है कि ओ हाउ डिड यू फाइंड द रेस्टोरेंट, तो वो सोचेगा अरे मैं कैसे ढूंढा था, यहाँ तक कैसे पहुंचा ये पूछ रहा है, या रेस्टोरेंट कैसा लगा ये पूछ रहा है, इजंट इट, होता है ना। तो अंग्रेजी में भी वही स्थिति है, क्योंकि यू हैव टू बी इन द कॉन्टेक्स्ट। अगर आपका मित्र गेट पे खड़ा है रेस्टोरेंट के, आपको कहता है कि वैभव हाउ डिड यू फाइंड द रेस्टोरेंट, तो यू सेड ओ सिंपली आई केम विद गूगल, यू नो दिस, गूगल से आ गया मैं, तो ढूंढता ढांढता गूगल मैप से, और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पूछा यदि आपके फ्रेंड ने, सो वैभव हाउ डिड यू फाइंड द रेस्टोरेंट,
इट वाज ग्रेट। तो आपको पता होगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उसी प्रकार से फ्रेंच में comment tu as trouvé le restaurant, अगर मिलते समय पूछा तो ऑफ कोर्स वो पूछे कैसे ढूंढा, ढूंढा कैसे, और लगा कैसे, वो अगर अंत में होगा प्रश्न। ये भी जैसे अवार और एत्रे उसी की तरह ये बोलते हैं ना, हेल्पिंग विच वन? थ्रू नहीं, थ्रू ये जो थ्रूवे है ये मॉन्जे शॉन्ते पार्ले के परिवार में जाएगा। ईआर एंडिंग है, देख रहे हैं आप? तो ये हाँ जी हाँ जी है ना। तो एत्र और अवार बड़े स्पेसिफिक दो हमारी शुरुआत वाली क्रियाएं थी, टू बी एंड टू हैव, तो उनको एकदम साइड में रखेंगे। उसके अलावा ये पूरी ईआर परिवार की कैटेगरी में चला गया। थ्रू ओके या और वैभव, इसमें सपोज मैं या वैभव। सपोज मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, हाँ सॉल्विंग द प्ले, हाँ तो वो आ, ढूंढ जाएगा या फिर से आएगा? हाँ वेरी गुड। जब आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, ढूंढने की प्रक्रिया में होते हैं, तो एक क्रिया होती है शख्से, सर्च करना, तब फाइंड करना नहीं होता। ढूंढ लेना, पा लेना इस थ्रू वे, पा लेना, उसको प्राप्त कर लिया आपने, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं तो शख्से, CHER, टू लुक फॉर, टू सर्च। आई फाउंड द की है तो मतलब चाबी मैंने ढूंढ ली, हाँ ढूंढ ली, हाँ फाउंड, आई हैव फाउंड, j'ai trouvé, मैंने ढूंढ ली, j'ai trouvé ma clé एंड लेकिन आपने कहा मैंने ढूंढ ली, ढूंढ, देखिए हिंदी में ढूंढना होता है ना, वो दो प्रक्रिया में चलता है। क्या कर रहे हो? अरे मैं मेरी चाबी ढूंढ रहा हूं, है ना, मिली नहीं है अभी तक, और मैंने मेरी चाबी ढूंढ ली। ढूंढ लेना, आप देखना हिंदी में भी हमेशा वैभव ढूंढ के बाद लेना लगता है, तब उसका कंप्लीशन होता है वो, आप समझ रहे हैं? तो दैट गिव्स यू सेंस ओनली व्हेन यू हैव लेना आफ्टर इट, व्हिच इज द व्हिच शोज द कंप्लीटनेस ऑफ दैट एक्शन। सो फ्रेंच भाषा में शख्स है ढूंढना लेकिन प्राप्त नहीं करना, और उसको ढूंढ लेना विल बी रविंद्र थ्रूवे। यू गॉट द सेंस? अंग्रेजी में जैसे टू सर्च एंड टू फाइंड। सो थ्रू वे बेसिकली वहां पे यूज होगा जहां पे हम चीज ढूंढ चुके हैं, हमारे पास है, वी हैव दैट। हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. या फिर आप ओपिनियन दे रहे हो, कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड द रेस्टोरेंट, कैसा लगा रेस्टोरेंट, कैसा लगा, तब भी ये थ्रू वे लगेगा वर्ब, राइट? ठीक है सर, राइट। ऐसे बोलो। फदसुसी, मान लीजिए आप अपनी चाबी ढूंढ रहे हो, तो मैं, अरे मैंने खूब ढूंढा, जे cherché, मैंने ढूंढा, जे cherché à la maison, मैंने घर पे ढूंढा, लेकिन मुझे मिली कहाँ मेरी चाबी? ऑफिस में मिली। जे cherché à la maison, में मतलब होता है किंतु, बट, में मतलब बट, मेरे को कहाँ मिली चाबी? जे trouvé au bureau, ब्यूरो मतलब ऑफिस, मुझे मिली कहाँ वो चाबी? मिली मेरे ऑफिस में। मैंने चाबी शब्द नहीं लिखा है ना, मैंने लिखा नहीं चाबी शब्द। j'ai cherché à la maison mais j'ai trouvé au bureau, राइट? ढूंढना कहीं है हाँ, anything, anything that you were looking for but you found it somewhere, so chercher सर्च करना and trouver is to find। और ये मेक की जगह पास भी यूज कर सकते हैं। में हो गया बट, और आप जो कह रहे हैं ना पास्क, पास्क बोल रहे हैं, पास्क इज बिकॉज, तो बिकॉज बैठेगा नहीं यहाँ पे वैभव। मैंने घर पे ढूंढा बिकॉज, बट मुझे मिल हाँ लेकिन, बट, है ना, वो सेंस नहीं बनेगा, वरना आपके वाक्य में कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आप बिकॉज डाल देंगे। तो आपको लॉजिकल या मे मींस बट, ये सारे ये होते हैं कंजंक्शंस होते हैं, राइट? इन कंजंक्शंस को आपको सही हिसाब से यूज करना है ताकि उस वाक्य का एक अर्थ निकले। ओके चलिए, Can I try to pronounce या पूरा sentence? हाँ बताइए प्लीज, पढ़िए। J'ai cherché, cherché, J'ai cherché à la maison, mais j'ai trouvé au bureau. bravo, j'ai cherché à la maison mais j'ai trouvé au bureau, मैंने ढूंढा घर पे बट मुझे मिला या मिली जो भी वस्तु थी एट द ऑफिस, राइट? यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा रविंद्र, वैभव एंड एवरीवन एल्स हु इज वाचिंग दिस वीडियो, कि हम घर के पहले आला लगा रहे हैं, हम ऑफिस के पहले एयू लगा रहे हैं, हम ये छोटी छोटी चीजें रेस्टोरेंट के पहले एयू लगा रहे हैं। ये बाद में मैं आपको एक्सप्लिसिटली पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, तब आपको याद करना है कि अच्छा हाँ वहां देखा था, ये देखा था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये टू द और एट द के नाम में चलता है, राइट? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थॉट आई क्विकली गेट यू अ लिटिल आइडिया अबाउट फोनेटिक्स। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा।
ये इतने अगर कॉम्बिनेशन आप समझ जाएंगे तो आप फ्रेंच बोलने में काफी हद तक कंफर्टेबल फील करेंगे। तो अगर आपको मिलता है यूएन नाम का कॉम्बिनेशन यूएन, तो उसको पढ़ते हैं हम बोलिए राइट और ये संख्या एक को भी क्या बोलते हैं जो नंबर 1 है दैट इज आल्सो राइट तो एक हम शब्द लेते हैं BRUN। वैभव आप पढ़ सकते हो BRUN को क्या पढ़ेंगे हम? वेरी गुड ब्र की ध्वनि हमने होल्ड की है रविंद्र एंड में ब्र राइट ब्र व्हिच कलर इज दैट वैभव? कौन सा रंग है ये? ब्राउन भूरे रंग को बोलते हैं ब्र। और यदि मैं इसके अंदर ई जोड़ देता हूं तो BRUNE बन जाता है और जो हिंदी में होता है भूरा भूरी, उसी प्रकार से फ्रेंच भाषा में होता है ब्र और फेमिनिन के लिए क्या हो जाएगा रविंद्र? हाउ डू यू रीड दैट वर्ड? ओके यूएनई को पढ़ते हैं यून। पढ़िए यून। वेरी गुड ब्रून मतलब ब्राउन फेमिनिन कलर राइट। जो भी चीज फेमिनिन होगी, घर अगर मतलब फेमिनिन होता है लेकिन किसी का घर भूरे रंग का है तो ब्रून होएगा उसके साथ, क्योंकि घर फेमिनिन है इसलिए ब्रून। तो मैंने आपके लिए लिख दिया था और यून, ये दो संख्याएं भी हैं। नंबर 1 is called and number 1 if it is addressed to a feminine object होगा यून। जैसे हम बोलते हैं स्टीलो एक पेन है स्टीलो क्योंकि मैस्कुलिन है स्टीलो। मैं लिख देता हूँ आपके लिए स्टीलो। लेकिन वहीं पे एक फूल होगा वो फेमिनिन है तो une fleur राइट une fleur। चलिए यदि आपको EN AN AM AN ये चारों कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, फिर से रिपीट करता हूं, E फॉर एलिफेंट के साथ N फॉर नेस्ट, EN AN AM AN ये चारों कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो हम इनको कैसे पढ़ते हैं? वेरी गुड पढ़ेंगे हम इनको या सो पता नहीं शायद ऐसा कुछ एक ही मात्रा आएगी तो वो नहीं, अगर एक हाँ नहीं अगर मैं एक ही मात्रा लगाऊंगा तो वो ओ हो जाएगा ओ हो गया ना ये चलिए ध्वनि को पकड़ना है आपको बोल के बताइए वेरी गुड बोलना है। आई वांट टू पुट जस्ट अ सेकंड, मैं इसमें एक और वर्ड डालना चाह रहा था, मैं इसको हटा के ठीक है ऑलराइट। सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल रिमूव दिस वन। हाँ एक और शब्द है वो बीच में आई हैव टू इंसर्ट या दैट इज ON, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होगा ओ और ये वाला जो है वैभव ये है तो ये है और ये है या नो हिंदी में कैसे आप लिखें दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको साउंड सही पकड़ना है। तो EN AN AM AN आई एम सॉरी, मैंने को लगता है मैंने यहाँ पे को EN लिखना चाहिए था, मैंने AN 2 बार रिपीट कर दिया, सो काइंडली एक्सक्यूज मी। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये E के साथ N है और E के साथ M है, E के साथ N है और E के साथ M है। I'll rewrite it just a second. हाँ मतलब E है, E फॉर एलिफेंट है उसके साथ MN है और A फॉर एप्पल है उसके साथ भी MN है। तो हाँ ये है EN EM AM AN, ये चारों, इन चारों की ध्वनि है ना कि ओ। तो एक शब्द देता हूं मैं VENT, कैसे पढ़ेंगे इसको वैभव? VENT को वॉ, वेरी गुड वॉ मतलब विंड, पवन, वायु, वेग, विंड को वॉ बोलते हैं, वॉ राइट वॉ। एक बात हमेशा ध्यान या टेल मी नो टेल मी प्लीज। हाँ वेरी गुड, बच्चों को बोलते हैं ना enfant। देखिए इसमें 2 बार आ गया enfant 2 बार ध्वनि आई वैभव enfant, बिल्कुल ठीक बोला आपने enfant, ठीक है एकदम राइट। तो इसलिए इसको भी enfant बोलना है enfant ओके। बट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम श्योर आपको याद है जब हमने ER एंडिंग वर्ब्स का कॉन्जुगेशन किया था तो हम ES EONS EZ और अंत में ENT लगाते थे
वहां पे मैंने आपको स्पष्ट रूप से मना किया था कि ईएनटी को ओ नहीं पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा उसको नहीं पढ़ना है। क्रियाओं में, वर्ब्स में ईएनटी को वी नेवर रीड इट, वी जस्ट स्टॉप एट अ पे रुक जाएंगे, राइट, ये ध्यान रखिएगा। नाउन्स में पढ़ते हैं, संज्ञा में पढ़ते हैं, एडवर्ब्स में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे, पर वर्ब्स में नहीं पढ़ेंगे, क्रियाओं में नहीं पढ़ेंगे। ओएन देख लेते हैं, ओएन को पढ़ते हैं ओ, तो एमओएन को बताइए रविंद्र क्या पढ़ेंगे? मो, मो, तो, बो, बोंजूर बोलते हैं ना, बोंजूर, बो, राइट, ओके। आगे हम देखते हैं आई एन, ए आई एन और ए आई एम, इन तीनों की ध्वनि एक सी है और वो है याद है इसको हिंदी भी कैसे लिखेंगे? आई वाज ट्राइंग टू राइट इट, तो हिंदी मुझे पक्का नहीं पता, पर मुझे लगता है पता नहीं कुछ ऐसा सा, आई डोंट नो। it can be also for our understanding, right? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नहीं, पर वो हो गया, करना है आपको। कुल मिला के रविंद्र की ध्वनि निकलनी चाहिए। अब आप देख लीजिए कैसे निकलती। हाँ, या मतलब हाउ वो अगर ये हिंदी वाला ए, इसकी ए हो जाएगा, ये आप ए ही बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या लिख रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। हाँ, ये ठीक है। हाँ, बस इसको पकड़ लीजिए। हाँ, बस ये है, इसको लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए, सो दैट एवरी टाइम यू लिसन टू आई डोंट नो, या ओके। तो इसलिए हम जो इंडियन है, तो हम क्या बोलते हैं इस वाले साउंड को? आंजिया, 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 ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। आंजिया, आंजियन, गर्ल के लिए एन एन ई हो जाएगा, बॉय के लिए आंजिया, गर्ल के लिए आंजियन, राइट, आंजिया, आंजियन। तो इसी आधार पे एफ आई एन को वैभव हम कैसे पढ़ेंगे? एफ आई एन को फा, 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 सॉरी, इसका मतलब एंड, समाप्त, या फिनिश, द एंड, एंड, फा। तो वही ध्वनि है रविंद्र, फ की ध्वनि जुड़ी तो फा, फा, ठीक है। और मैं इधर कुछ और शब्द लिख देता हूं आपके लिए इसी फैमिली के। एक होता है भूख लगना, भूख को बोलते हैं हम FAIM। क्या पढ़ेंगे? FAIM को भी फा, फा, वही फा, फा। और वाइन को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? VIN, कैसे पढ़ेंगे? वेरी गुड, वा, वा, फा, आंधिया का आंधिया, आंधिया। क्लियर है सब? या सेम है साउंड, हाँ सेम साउंड। FIN या FAIM दोनों का साउंड है फा, फा। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा, राइट? हाँ, कि समाप्त है कि भूख है, ये कहना चाह रहे हैं आप दिस वे इन जो फिनी, ओके, जो फिनी और जो फार्म, राइट? हाँ भाई, लेकिन आपने फिनी बोला है, तो फिनी का तो शब्द ही कुछ और हो गया, FINI। वो तो उसकी ध्वनि बदल गई ना, फिनी बोल दिया आपने, फैन ही बोला ना। आप ये कह सकते हो कि ये मेरे भूख की समाप्ति है, तो सर इसमें क्या फैं फैं बोलूंगा मैं? बिल्कुल नहीं, फैं फैं बोलोगे आप। कैसे? दिस इज द एंड ऑफ माई हंगर, से ला fin de ma faim, ओके, से बड़ा सेंटेंस बोलेंगे तो मैं ये तो है ही है ना, राइट? से ला fin, दोनों की ध्वनि फैं फैं की है, राइट? और पहला वाला FIN जो है वो होता है एंड, और जो दूसरा वाला है FAIM वो है भूख, हंगर। सो दिस इज द एंड ऑफ माई हंगर, c'est la fin de ma faim, faim, faim। ये आप शायद कहना चाह रहे थे कि faim, faim की ध्वनि नहीं, बताइए। जैसे सर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, हाँ, खाना मतलब बचा हुआ वेटर वांट्स टू पिक द डिश, हाँ, so he is asking fini, so we say fini। हाँ, fini, that is fini, that's not the same sound, so we say fini। उसने पूछा मतलब क्लियर कर दूं तो monsieur c'est fini, oui c'est fini। तो c'est fini जो है वो FINI होगा,
इट्स नॉट द सेम वर्ड, राइट? से फीनी, वो दैट्स Hmm. या वो फै होता वैभव, लेकिन आई आने के चक्कर में फैनी नहीं बोल सकते हम, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्पीक, सो हम उसको फैनी की जगह फीनी कर देते हैं, ये चेंजेस होंगे, फीनी, Hmm. राइट? ça va? Ok, d'accord, merci. D'accord. Ravindra, ça va? C'est clair? C'est clair, oui. C'est clair. Très bien. Ok. The way I gave you this one, c'est la fin de ma fin. ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स आप देखिएगा ब्रिटिशर्स के, वो कहते हैं हम जो फ्रेंच पढ़ते हैं तो हरे रंग को भी बोलते हैं वेर, कांच को बोलते हैं वेर, टूवर्ड्स को बोलते हैं वेर, जो छोटा सा जो केंचुआ होता है उसको बोलते हैं वेर। तो एक केंचुआ हरे रंग के कांच के ग्लास की तरफ आगे बढ़ा तो वेर 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 हो गया पूरा, सो यू नो। तो ऐसे करके खूब सारे फनी आप देखेंगे शॉर्ट्स हैं। तो जो फै है, वेर वेर है, और खूब सारे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग में फर्क है बट साउंड मोर और लेस सेम चलता है, तो उसमें बहुत फनी सेंटेंसेस बन सकते हैं। ओके, जैसे सर वो और वो 20 को भी वो बोलते हैं, किसको? 20 को हाँ, भी 20 वो को वैं, बोलते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाइन को वैं बोलते हैं, VIN, रविंद्र। और जो संख्या नंबर 20 होती है उसकी स्पेलिंग होती है VINGT, और इसकी ध्वनि भी होती है वैं, वैं वैं। तो अगर 20 वाइन की बॉटल्स पड़ी है तो j'ai 20 bouteilles de vin, j'ai 20 bouteilles de vin, मेरे पास 20 वाइन की बॉटल है, j'ai 20 bouteilles de vin, राइट? वैं वैं। Okay, no, that's the fun of this language कि अगर आप अच्छे से बोल पाएंगे तो आपको वैं वैं, you can always play with this, that would show कि आपका pronunciation बहुत clean है और आपको समझ में आता है, so that's true. Okay, आगे हम बढ़ते हैं। एक होता है CH का हमेशा श है, श, तो ये तो आपको पता है। तो CHAT को रविंद्र बताइए क्या पढ़ेंगे अगर टी को नहीं पढ़ते तो? Sham. शा। Which animal is that? Sham. Cat. Cat. Perfect. GN की जो ध्वनि होती है वो होती है न्य, न्य। GN होता है न्य, राइट? न्य। तो एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, रसोई में बड़ा पाया जाता है ये, OIGNON, बताइए। No, listen. हाँ, प्याज, प्याज. या प्याज. प्याज है, राइट? अनियन, सो ओइन्यो, ओइन्यो, Oinium. ओइन्यो। Oinium. Oinium. अच्छा, listen को I think A-I-N. हाँ, exact, AIL, A-I-N. yeah, that's correct. दिलाई। तो इट इज ओइन्यो। देखिए OI को हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली? उआ, ध्यान रखिएगा, उआ पढ़ते हैं ना, उआ। ये एक ऐसा केस है वैभव एंड रविंद्र की इसमें ओई पढ़ना है, ध्यान रखना, इसको ओआन्यो मत पढ़िएगा कभी भी, ओइन्यो पढ़ते हैं इसको, ये स्पेशल केस है कि प्याज को ओइन्यो पढ़ते हैं OI होने के बावजूद भी, यू डोंट से ओआन्यो, नो, यू से ओइन्यो। सो GN की ध्वनि हुई वैभव न्य, और ON सीखा था ओ, तो ओइन्यो, ओइन्यो मतलब अनियन। चलिए, और OI तो हमें पता ही है, उआ होता है, तो MOI क्या हो जाएगा? मुआ, तुआ, सुआ, थुआ, ये सारे आपको शब्द पता है। EU की ध्वनि होती है अ, ये हिंदी वाला अ नहीं है, लेकिन आपको लिप्स को राउंड करना है, बोलना है अ, अ, राइट? तो मान लीजिए संख्या नंबर 2 को क्या बोलते हैं? DEUX, दो. द, दो. दो. द, दो द। दो जिस प्रकार से पुवार और बुलवार याद है आपको, प, व, द, वही ध्वनि है, राइट? और फायर को, आग को बोलते हैं फ्रेंच में FEU, कैसे पढ़ेंगे? फ, फ, फायर, फ, फायर को बोलते हैं फ, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। OU की ध्वनि होती है उ, 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 राइट? सो एक वेयर को बोलते हैं हम उ, इस वाले उ पे एक्सेंट आता है उ, ध्यान रखिएगा। वेयर, कहाँ, उ मतलब कहाँ, वेयर, जब इस पे ऐसी मात्रा आएगी, और सिर्फ ये वाला उ आएगा OU, तो ये होता है अंग्रेजी का और, अथवा। तो अंग्रेजी का ये वेयर है और ये अंग्रेजी का और है उ, दोनों की उ की ध्वनि है, पर एक में मात्रा एक में मात्रा नहीं, ध्यान रखिएगा। और इस शब्द को कैसे पढ़ते हैं? फॉर को पूर,
पूर, राइट? pour, अभी अंग्रेजी का पोर नहीं है ना, पोर नहीं है, पूर बन गया, POUR, पूर, पूर। इसका क्या मतलब होता है? पूर मीन्स फॉर, के लिए, ये- के लिए, फॉर। ये सेपुर, काफी चला रहता है। जैसे आपने कोई किसी के लिए कुछ लेके आए हो आप, और आप कह रहे हो तुम्हारे लिए है, तो आप कैसे बोलोगे? इट्स फॉर यू। C'est pour. सेपुर C'est तुआ, pour je. सेपुर तुआ। Non, c'est pour toi. हाँ, क्यों नहीं लगता? देखिए, अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, गेस भी किया कि त्यू क्यों नहीं लगा, तुआ क्यों लगा? क्योंकि त्यू से हमारा वाक्य बनता है, और ये जो तुआ है ये हमारे प्रीपोजिशंस के बाद में रखा जाता है। सेपुर तुआ, ये तुम्हारे लिए है। ये toi. बाद में हम सीखेंगे डिटेल Toi में। is moi is मैं. हाँ। Toi. अब तो वो व्यक्ति हैरानी से पूछेगा आपसे, रविंद्र, आ सेपुर मुआ, वी सेपुर तुआ, राइट? दैट वे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ILL देख लेते हैं। ILL की ध्वनि होती है ईयर, ईयर। और एक शब्द है FILLE। क्या साउंड होगा इसका वैभव? FILLE। fear, फियर, फ ई की बड़ी मात्रा और ये फियर, विच मीन्स डॉटर और गर्ल, बेटी या लड़की दोनों को फियर पढ़ते हैं। लेकिन कई बार लोग फ्रेंच में फियर तक नहीं जाते रविंद्र, फी पे रुक जाते हैं। फी या फियर दोनों ठीक है। फी पे भी रुक सकते हो आप, या ये तक जा सकते हो, फियर दोनों ठीक है। और अंत में AU तो आप जानते ही हैं, क्या होता है AU का साउंड? Oh. ओ, oh, ओ, Oh. सिंपल। अंग्रेजी का LMNO, ओ वो वाला साउंड है, ओ। Oh. तो BEAU की ध्वनि क्या हो जाएगी रविंद्र? Beau. वो, वेरी गुड। वो मतलब हैंडसम, हैंडसम। ओके, ये इसको E A U नहीं लेंगे, U हाँ हाँ, BE ब और ओ, बो। BE तो ब रहा, और ब में ओ जुड़ा, तो ब ओ बो। बो, बो। सबा, चलिए इसको आप देखिएगा अच्छे से। ये तो ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करें उतना आएगा। यहाँ पे रुक कर इसको तो हम बार बार वापस आके देख सकते हैं, लेकिन आगे टेक्स्ट को पढ़ना इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, so this was the text, if you remember, the long awaited text for us. So हम इसको देखते हैं। चलिए ये पढ़ते हैं। चुप ऐसे ये वैभव, चुप ऐसे ये मेरा प्रश्न है। चुप लीड, अगर मैं कहूं लीड इज, what does that question mean if I ask this question to you वैभव? चुप लीड, चुप लीड क्या कहना चाह रहा हूं मैं? can you read? वाला, how do you say yes I can read? मैं पढ़ सकता हूँ, बताइए। Okay, you want to use you want to use the verb ऐसे ही है। मैं एक्चुअली ऐसे ही लिखना चाह रहा था, फिर मुझे लगा कि मुश्किल लगेगा, पर आपको पता है तो we, मैं पढ़ने का प्रयास कर सकता हूँ, that's what he wants to say, मैं पढ़ने का प्रयास कर सकता हूँ। so we, je peux, थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूँ, या je peux essayer, ESSAYER। और ऐसे के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा DE द लगता है अगली क्रिया के लिए। je peux essayer de lire, je peux essayer de lire का क्या मतलब है वैभव? Yes, I try to read. I can try to read, I can try to read, ठीक है, can है ना, Yes. क्योंकि I प्रश्न can try, Varsity, So- या वैभव बताइए पहले आप। का मतलब हाँ, अब देखिए ये जो द है ना, ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं होगा, ये ऐसे ये हमेशा द के साथ चिपका हुआ रहता है, यानी ऐसे का द आता ही आता है अगली वर्ब के लिए। मैं लिखने का ट्राई कर सकता हूँ जब ऐसे ये द इकरीर, मैं बोलने का ट्राई कर सकता हूँ जब ऐसे ये द पार्ले, जो इंग्लिश में हो जाएगा आई कैन ट्राई टू, टू बन जाएगा, ये द जो है ना वो टू बन जाएगा। लेकिन फिर आप ये मत कहिएगा ऐसे कि का मतलब try होता है। या टू ट्राई, ऐसे मीन्स टू ट्राई। पर फिर आपको ये नहीं कंफ्यूज होना वैभव एंड एवरीवन एल्स कि ये जो दो तो
हमने तो आ सीखा था, टू और एट, द कहाँ से आ गया? तो वो इसलिए क्योंकि इससे ये जो है वो अपने आप द को साथ लेके चलता है, यू नो देयर आर सर्टेन रूल्स यू हैव टू फॉलो, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होंगे, राइट? तो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको. सो वी je peux essayer de lire, which means yes I can try to read. चलिए पढ़िए, vas-y. Mari habite dans un petit village à la campagne. Chaque matin, elle ouvre les fenêtres pour laisser, हाँ नहीं ज नहीं, स की ध्वनि है वैभव, laisser, हाँ entre नहीं है, entrer, ई आर की जो क्रियाएं खत्म होती है वो ए पे खत्म होती है, entrer, करेक्ट, frais, हाँ, Ensuite, elle prépare son petit déjeuner et boit un café en regardant le jardin. right, Après avoir mangé, elle lave les assiettes. इसमें हम वैभव ले के साथ ही जोड़ देंगे les assiettes. Yes, sorry, yes. Les assiettes. Very good. Et organise, नीजे नहीं है, नीज अ पे रुकना है ना, organise, yeah, right. Marie travaille. travailler नहीं है, Marie travailler नहीं पढ़, travail, voilà. Travaille dans une ferme. ferme पढ़ना है, firm नहीं, ferme, खींचना है सुबह, ferme, yeah, that's correct. पढ़िए. Les animaux. Voilà. Et nettoyer. Nettoie. Et nettoie. Les étables. Voilà. Parfois, elle aide. son voisin à planter. planter की बजाय आपको बोलना है planter, याद है an को वैभव, planter. Yes. À planter des légumes dans les jardins. dans les बोलेंगे या le बोलेंगे, dans le jardin. Voilà. Elle aime. Right, that's correct. Elle aime beaucoup travail dehors. नहीं, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, इसको वैभव अच्छे से पढ़िए. पूरी क्रिया है travailler, right वैभव, travailler. Yes. Beaucoup pour travailler dehors. dehors. Car elle adore la nature et le calme. हाँ, ने नहीं है, ये पूरा मुंह खोल के, nature. et le calme. Very good. इंग्लिश में एल को नहीं पढ़ते, calm बोलते हैं. she is very calm, he is very calm, but फ्रेंच में calm, right? Okay, great, wonderful. लगा आपको इसमें मेहनत लगी थोड़ी बहुत? So the fact is, अब नीचे वाला आपको पढ़ना है रविंद्र. So the fact is, बहुत अलर्ट होके पढ़िए, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, बट अपने दिमाग को सही संदेश दीजिए कि LE is ल,
ला नहीं है, ले नहीं है, लो है। और थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़िए, तो कम भी पढ़ेंगे ना तो भी सही पढ़ना आप रखेंगे अपना जारी, तो आप सही पढ़ पाएंगे आगे तक। चलिए, लेट्स लिसन व्हाट रविंद्र हैज टू से फॉर दीस 2 लाइंस, 4 लाइंस इन द एंड। पढ़िए। Le après-midi, हाँ हाँ, l'après-midi, après-midi, l'après-midi, एक le, साथ। le après-midi, हम्म Marie, retrouve, हम्म retrouve. नहीं, अभी trouve पढ़ा था ना, trouve याद है आपको? उसके पहले Yes, true. retrouve। Retrouve. Marie retrouve c'est, हम्म c'est और c'est, से, ऐसे इसको से पढ़ते हैं। c'est. Marie retrouve c'est ami हाँ। au हम्म au. ओ Ami au नहीं, café. ओ नहीं है, ओ है, ओ। ओ, ये ओ था, ओ काफे। Sorry, au. C'est ami au café du village. Sorry, du village. ओके। Village. हाँ, विलाज, वेरी गुड। और ये ड्यू है। और यहाँ ध्यान रखना है हमारे को, रविंद्र, एस और ए जुड़ जाएंगे। सेजामी, धीरे धीरे याद कीजिए, सेजामी। आगे। Ses amis au café du village. वेरी गुड। Il this क्यूट, क्यूट, cute क्यूटे नहीं, क्यूट, cute क्यूट। cute okay तो ईएनटी को नहीं पढ़ेंगे ना, याद है आपको? दिस क्यूट। this cute il this cute R-E-E-N-T Ron देखिए, Ron सुनिए रविंद्र, ईएनटी को तो पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आर आई पे रुकना है, तो री, री। ओके मैं ENT साउंड डाल दी थी, तो मतलब ENT जहाँ पे भी किसी में भी नहीं पढ़ना। जब वो क्रिया होगी तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये व्यक्ति है जिसका एक्शन है डिस्कस करने का, हंसने का, बांटने का, तो ये सब क्रियाएं हैं, तो क्रियाओं में ईएनटी को नहीं पढ़ेंगे। ओके दिस क्यूट री एंड ए partage, partage ये कल आपने बताया था, है this story des histoires, des histoires, voilà. des histoires appris elle Retourne chez elle pour arroser les fleurs les fleurs et ranger la maison. Ranger la maison. ठीक है, next. Le soir, elle dîne, right, dîne, tranquillement et regarder un film. अच्छा, regarder क्यों बोला आपने रविंद्र? regarde पे रुकना था आपको, regarde un film है ना? Regarder हो जाएगा ER के साथ। हाँ। Et regarder un film avant de dormir. Elle lit souvent, हाँ, OU को क्या पढ़ेंगे? SOU हो गया सू, और VENT याद है? vont, souvent, lit souvent un livre pour se détendre. Se détendre. Finalement. Very ment पे गड़बड़, finalement. Elle éteint la lumière et dort
A dot. Hmm. Paisiblement. paisiblement, paisiblement, Paisiblement. perfect. चलिए मेहनत तो लग रही है, इसका मतलब है कि हमें और मेहनत करनी है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज इम्पेरेटिव। प्रोनाउंसिएशन, अब आपको जहां आजू बाजू में फ्रेंच में इतना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, पढ़िए उसको, दिमाग लगाइए, अच्छा ये ओ एन है, ये ए एन है, ये है, और उसको ट्राई कीजिए। अब एक मैं काम करता हूँ, फटाफट से इस टेक्स्ट को पढ़ता हूँ आपके लिए, बहुत अलर्ट होकर सुनिएगा मेरे साथ, अपने दिमाग में पढ़िए और देखिए कितना आपने सही पढ़ा, और फिर वील रैप द सेशन। सो इट गोज लाइक दिस। Marie habite dans un petit village à la campagne. Chaque matin, elle ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Ensuite, elle prépare son petit déjeuner et boit un café en regardant le jardin. Après avoir mangé, elle lave les assiettes et organise sa journée. Marie travaille dans une ferme, elle nourrit les animaux et nettoie les étables. Parfois, elle aide son voisin à planter des légumes dans le jardin. Elle aime beaucoup travailler dehors car elle adore la nature et le calme. L'après-midi, Marie retrouve ses amis au café du village. Ils discutent, rient et partagent des histoires. Après, elle retourne chez elle pour arroser les fleurs et ranger la maison. Le soir, elle dîne tranquillement et regarde un film. Avant de dormir, elle lit souvent un livre pour se détendre. Finalement, elle éteint la lumière et dort paisiblement. कंट्रोल में था सब कुछ? ऐसा लगा कि बहुत अजीब सा था, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट रविंद्र? इज दैट सो वैभव? ओके चलिए। आई थिंक हमें पेरेंटिक साउंड थोड़े क्लियर जब तक वो हम्म। नहीं होंगे, हमें थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बार बार इस वाली शीट पे जाना है कि अच्छा ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको फिर भी दिक्कत दे रहा है, यू कैन ऑलवेज रिकॉर्ड योर वॉइस एंड सेंड इट टू मी। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द वीकेंड टू हेल्प मी, टू हेल्प यू फॉर द रिस्पॉन्स। यू कैन ऑलवेज आस्क मी ड्यूरिंग द वीकडेज एज वेल। तो अब छोटा सा होमवर्क है बिफोर वी रैप अप, इसके संबंधित प्रश्न उत्तर हैं जिनका आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आगे उत्तर मैंने दे रखे हैं, तो कंफर्म कर लीजिएगा हाँ हमने भी यही देखा और हमें भी यही समझ में आए हैं। अंत में एक टेक्स्ट है जो आपको पढ़ना है, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको ट्राई करना है, इसका मीनिंग आपको अंग्रेजी में लिख के लाना है, मीनिंग इसका भी लिखना है अंग्रेजी में ऊपर वाले टेक्स्ट का। सो एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज इंश्योर दैट व्हेन वी मीट नेक्स्ट वीकेंड you should have done the translation of this text in English and the pronunciation of this text in French and the translation of this text in English. उसके साथ यदि समय मिले तो आप आगे एक इसको टेक्स्ट को छोड़ दीजिएगा। ये वाला एक टॉपिक है, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, ये पीडीएफ में आप देखिएगा, एडजेक्टिव पॉजेसिव की लिस्ट देख लीजिएगा, बस इस लिस्ट को देखिएगा, इससे हम अगली क्लास का टॉपिक चालू करेंगे नेक्स्ट टाइम। मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, इस तरह के जो होते हैं हमारे एडजेक्टिव पॉजेसिव, ये वो चीज है। Alright, est-ce que vous avez des questions, Vaibhav? Une question. Yeah, tell me. So, like last week, I was doing teleworking. You know teleworking? Yeah, télétravail. Teletravail. Yeah, working from home. So, I wrote to my colleague, je suis teletravail. So, he says, no, je suis un teletravail. Je suis un télétravailleur. télétravailleur बोला होगा उन्होंने, है ना? So I am a distant worker के रूप में वो होता है, या je télétravaille, je fais du télétravail, मैं तो उसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना, je suis, I am, right? तो और télétravail होता है work from home। तेले मतलब होता है दूरी, तेले मतलब दूरी, और खवाए मतलब काम। से दूरी से काम करना, घर से काम करना। टेलीफोन याद है? टेलीफोन दूरी से बात करना, दूरभाष हिंदी में बोलते थे। टेलीविजन दूरदर्शन, दूर से दर्शन करना। तो तेले मतलब फ्रेंच में होता है दूरी, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस वर्किंग इज वर्क फ्रॉम होम। सो आपने जो कहा, आपने क्या कहा? je suis, आपके फ्रेंड ने करेक्ट किया, je suis télétravailleur, télétravailleur। ओके, अच्छा, ओके, ये हो गया je suis un télétravail। हाँ, मैं समझ गया, क्योंकि आप AU नहीं लिखना चाह रहे थे, EN इसलिए क्योंकि मैं इस प्रक्रिया में हूं।
मैं télétravail की प्रक्रिया में हूँ, मैं उस प्रोसेस में हूँ, ये इन के रूप में है। और ये ओ होता है je suis au télétravail, मैं डिस्टेंस वाले काम पर हूँ, में हूँ और पर हूँ, मतलब उस ambiance में हूँ तो en télétravail, and OU is at that place. So बहुत subtle difference है en का और AU का. So en télétravail means कि I am in that process of working at distance or working from home. voilà, या simply आप ये भी कह सकते हैं je fais le télétravail, मैं डिस्टेंस वाला काम है, je fais le télétravail, I'm doing work from home, je fais le télétravail, ये भी कह सकते हैं आप. Okay, Ça va? just भी télétravail लिखा ना, travail ये लिखा. हाँ वो तो उसमें कर देंगे. हाँ voilà, so je suis en télétravail, क्योंकि je suis के साथ आपको en télétravail आप लिख सकते हो, आप इस प्रोसेस के अंदर हो, आप उस पूरी प्रक्रिया में. C'est clair? Ça va? ठीक, ça va. Très bien. Ça va? Okay, so we'll catch up next weekend, but then please ensure that you study during this week and stay in touch with me. Voilà, je vous souhaite bon week-end. Still the day is left for you, so bon week-end, bon dimanche, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. 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 Bon week-end. Au revoir. Bon week-end.